नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राहुल गांधी ने जमकर चुनाव आयोग की क्लास ली और मुंबई में तीनों पार्टियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम पिछले कई महीने से, जब से चुनाव संपन्न हुआ है महाराष्ट्र का, तब से लगातार 5-6 बार चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा की जो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट है वो मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। ऐसे सवालों के बीच राहुल गांधी ने जब ये चीज़ें सामने रखी तो वो हम एक वीडियो आपको राहुल गांधी का दिखाते हैं। उसके बाद हम केजरीवाल के घर पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचा है उसकी भी एक बात आपके सामने रखते हैं। पहले सुनिए राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में। राउत जी, सुप्रिया जी, आप सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। We represent on this table the entire opposition that fought the last election in Maharashtra, and we want to bring to the notice of the people of India some information that we have found about the Maharashtra election. We've studied in detail the voter lists, the voting patterns, and we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. I want to place on the table a few things that I think it is important for the country, especially the young people who defend democracy, believe in democracy, to see and understand. So I'd like to start, well, that's Ambedkar ji, who helped build the constitution of our country, and he says the electoral roll is a most fundamental thing in a democracy. It was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. Now, this is really the question here. I'd like to give a little bit of a background. Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, Election Commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added
to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now, this is an obvious anomaly, right? Somehow, voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores, and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many, many places, one of many, many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list, names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we've also found, which we want to understand. There are many, many, many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities, right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. Now, the only reason they would not respond is that there is something wrong with what they have done. I am not making any accusations. I am presenting data here clearly. And I am asking the Election Commission again. The three major opposition parties of Maharashtra are asking you for the voter list of Lok Sabha and the voter list of Vidhan Sabha elections. It is your duty to provide transparency in the election. It is not our responsibility to provide transparency in the election. So it is important that now, after repeated requests from the entire opposition here, that the Election Commission hands over the voter list so we can take our investigation to its logical conclusion. I'd like to just say this in Hindi as well. Sorry. पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद
वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब आपने देखा राहुल गांधी ने पूरी पोल खोल करके रख दी है। वहीं कोई भी पत्ता इधर से उधर नहीं हिल रहा है। चुनाव आयोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो
लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इस तरह की जब कोई बात होती है तब उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रहा है कि उसको आखिर क्या करना है। अब हम दिखाते हैं आपको एंटी करप्शन ब्यूरो, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, उनकी एक चिट्ठी पहुंचती है एलजी के पास। और एलजी, ये आज की बात है 7 तारीख की, एलजी उस पर तत्काल एक्शन लेते हैं और पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हैं कि इस सारी मामले की जांच की जाए। और पुलिस आयुक्त भी तत्काल, मतलब कहीं भी 1 मिनट नहीं लगता, फाइल रुकती नहीं है, और वो अपने एंटी करप्शन ब्यूरो के जो उपायुक्त हैं उनको कहते हैं कि जाकर के देखिए, आपके विधायक हैं अलावत और केजरीवाल के घर पर ये जांच पड़ताल कीजिए कि 15 करोड़ रुपया कौन किसको कहाँ दे रहा है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी को पता चलता है तो केजरीवाल के घर पर वकीलों की एक टीम पहुंच जाती है और उसने पूरा विरोध किया, एंटी करप्शन के साथ बैठक की और उनको कहा कि आप सम्मानित अधिकारी हैं, किसके कहने से आए हैं, क्या नोटिस है आपके पास, क्या लिखा पड़ी है आपके पास। इसके बाद जब वो लॉयर अपनी बात कहते हैं, उसके बाद हम आपको इसी के साथ ही संजय सिंह की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या एक तरह से पत्रकारों से वो झुंड में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट पार्टी है और उनके आका ने निर्देश दिया और एंटी करप्शन ब्यूरो आ गई। तो ये हम वीडियो आपको अभी सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। कोई भी किसी के घर पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बिना अधिकृत कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू। कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। उनके इन्वेलप में क्या था मैं बताऊं आपको? उनके इन्वेलप में था कागज सफेद, उनके इन्वेलप में था मोहर, उनके इन्वेलप में था पेन्स। They don't have the stationery to write a notice। इनको फोन आया इनके आला कमान का कि पहुंचो केजरीवाल के घर पे, और ये चले आए हैं। ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। अरे जब तक इनके आका बोलेंगे तब तक इनका नोटिस आएगा। आका के कहने पे काम कर रहे हैं। एक गाड़ी पे 4 लोग भर के आ गए कि केजरीवाल के घर पे पहुंचना है, पहुंच गए। कानून है इस देश का, इस देश का कानून हर आदमी को प्रोटेक्ट करता है। और हम लोग यहाँ पे वकील लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनको कोई गैर कानूनी काम करने नहीं देंगे। तो उनके पास जाए ना, उनसे जांच करे ना, उनसे पूछे जाके कि क्या कंप्लेंट है, कहां से कॉल आई, कौन से नंबर से कॉल आया, जांच करें। जांच करने के बजाय यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग। उनसे बार-बार पूछ रहे हैं, हर आधे घंटे में पूछ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, प्रेम से पूछ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाशय बताइए, आप लोग इज्जतदार लोग हो, आप लोग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, आप किसी की नौकरी कर रहे हो, किसकी नौकरी बजाने आए हो? ये किसी नेता के कहने पे आए हो? बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान, हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर हमने उनसे बात की। आपने देखा संजय सिंह ने और आम आदमी पार्टी के वकीलों ने किस तरह से पूरी कहानी को पलट दिया
और एंटी करप्शन ब्यूरो बिना किसी जांच पड़ताल के या बिना किसी एक्शन के वापस लौट गई। तो ये सारा जो ड्रामा चल रहा है, कल पोलिंग हो चुकी है, उसका जो रिजल्ट आने हैं, कल मतगणना होनी है और उससे पहले इस तरह की कहानियां हो रही हैं। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि जो हमारे जो विधायक हैं अलावत, उनके पास फ़ोन आया इस नंबर से, इस नंबर पर जांच करिए कि वो हमारे विधायकों को क्यों बुला रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि ये जो पूरी कवायद चल रही है इस समय गोदी मीडिया में कि 10 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और जैसे ही मान लो हंग असेंबली भी होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सरकार बना लेगी। अमित शाह का एक बयान भी आया था, उस बयान के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें कहा गया था कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। दूसरा 14-15 जो पोस्ट पोल हैं उनमें एक जो दिखाया गया है उसमें से शायद 12-13 ने तो क्लियर कट मेजॉरिटी दिखा दी है कि इसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 1-2 पोल ने कहा है उसकी कौन सुनता है क्या है, लेकिन उन्होंने भूमिका अभी से ऐसी बना दी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कैसे भी ये तो सारी चीज़ें आपको मालूम है कि जो सैनी हैं चीफ मिनिस्टर इस समय हरियाणा के, उन्होंने चुनाव के तत्काल बाद एक बयान दिया था कि नहीं हमारे पास सारे इंतजाम है, सरकार हमारी बन रही है। इसी टाइप से अमित शाह ने भी सारी चीज़ें पहले से ही तय कर दी हैं कि सरकार दिल्ली में हमारी बन रही है। एलजी को चिट्ठी गई, एलजी ने तत्काल हो सकता है अमित शाह से बातचीत हुई और उनके निर्देश पर तत्काल एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ भाड़ थी उसको देख करके वो एंटी करप्शन लौट गई। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि 4 आदमी आए गाड़ी में बैठ करके ऊपर के आका के निर्देश पर और वो जांच की बात कहने लगे, हम आ गए हैं आपके पास, हम आपको नंबर दे रहे हैं, किस नंबर से कॉल आई है, आप जांच करिए। तो खैर आपको ये वीडियो छोटा सा कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह की खबरों के लिए हम आपसे हर वक्त तैयार हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आपको ये ऐसे वीडियो हम पेश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।